सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹਨ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਸੀਮਲ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ PS ਟੈਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ 1, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈਵ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15/1600 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 5/2। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ 2 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 2.5। ਮੰਨ ਲਓ 3 ਹੈ, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 1.5। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ 5 ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1/3। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 0.333333। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2.5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਗਰ 0 ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 0 0 0 0। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, 0 ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ 2.5000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ 2.5 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2, ਤਾਂ 2.000000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ 2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 0 0 0 ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2.90 ਮਾਈਨਸ 0.45। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2.45।
ठीक है। तो आ 0 की है 9 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 900 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 450 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 0, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 0, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 0, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 0। ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ठीक है जी, नॉन टर्मीनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। ਹੁਣ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1/3 0.33333 ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2.5 ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ 0 ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ 5/2 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 0 ਤਾਂ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਟ 5 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ। बट इतने देखो 1/3 च की हो रहा है 0.33333 ये चलता जा रहा है। ठीक है। ये नहीं रुकेगा, इस करके ये रिपीटिंग है। जेकर मान लो इतने कला होंगे 0.3 फिर भी रिपीटिंग होना सी, क्यों, क्योंकि 0.3 के पिछे 0 तो चल ही रही है। ठीक है। बट 1/3 की है 0.33333 है, इस करके इसनों नॉन टर्मीनेटिंग है, अशांत, ये अशांत है। ठीक है। 2.5 की है शांत है क्योंकि इसके पीछे 0 चल रही हैं, कोई होर नंबर नहीं चल रहा। बट इसके पीछे की है 3 चल रहा है ना, 0.33333, इस करके यह अशांत है। हुण जेकर आप गल करिए नॉन रिपीटिंग की, तो इसकी सब तो सिंपल जी डेफिनेशन होती है अंडर रूट वाले, जिमें √2, √3, √5। ठीक है। या फिर कोई नंबर मान लो 0.127938। तो हम आप क्वेश्चन पर आते हाँ। क्वेश्चन के अपन की क्या गया है कि इन्हों के विचों, ठीक है, किहड़ा रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही हैं, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैं रैशनल नंबर किहड़े होंदे हैं, P/Q फॉर्म। ठीक है। P/Q फॉर्म जिथे Q 0 के इक्वल नहीं होंदा, वो होंदा है रैशनल नंबर। ठीक है। तो इन्हां विचों किहड़ा रैशनल नंबर शांत है यानी कि टर्मीनेटिंग दशमलव विस्तार है, यानी कि शांत विस्तार देगा किंदा, दशमलव का। ठीक है। हुण शांत विस्तार जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल दी सी 3/2 बराबर 1/5 हुंदा है, ये की है, टर्मीनेटिंग है। ठीक है। टर्मीनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। हुण देखो इत्थे ना आप एक छोटी जी ट्रिक यूज़ करांगे। देख जेकर आप इसनों डिवाइड करन लगांगे, चैक करांगे कि यह मतलब कि शांत हैगा या नहीं हैगा, तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप एक छोटी जी ट्रिक की वरतों करांगे। इत्थे देखो जिहड़ा टर्मीनेटिंग होएगा ना, वो की होएगा, उस दे विच जो क्यू है अपना डिनोमीनेटर, ये क्यू डिनोमीनेटर है ना, जिवें इत्थे मान लो ए ऑप्शन जो है अपनी, उस दे विच की है 15/1600 है। ठीक है। 15/1600 है ना, तो डिनोमीनेटर आ है क्यू। ठीक है। क्यू बराबर 1600 है अपना। ठीक है। तो क्यू जिहड़ा है वो की होवेगा 2m × 5n की एक्सपेंशन होगी। क्यू अपना 2m × 5n की एक्सपेंशन होगी। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जो क्यू है अपना 2m भी हो सकता है या फिर 5n भी हो सकता है। सौखी भाषा के फिर दसा जो अपना क्यू होगा ना, या तो 2 गुना 2 की पावर कुछ तो 5 की पावर कुछ का गुना होगा, या फिर 2 की पावर कुछ होगा, या फिर 5 की पावर कुछ होगा। ठीक है। हुणे तुहानूं एग्जाम्पल नाल समझाउंदा है मैं, जिवें मान लो आपां लिया 9/20। ठीक है। 9/20 हुण बटे दे विच अपना की है क्यू है, क्यू बराबर आ गया 20। हुण मैं 20 नूं मैं की लिख सकदा 2 × 2, ठीक है, गुना 5 बराबर 2 × 2 यानी कि 2 का स्केयर गुना 5। ठीक है ना। तो इन्ना मतलब बटे दे विच अपना क्यू की है 2 का स्केयर गुना 5 यानी कि 2 की पावर कुछ है तो 5 की पावर कुछ है, तो 5 की पावर की है 1 है। ठीक है। तो क्यू अपना ये आ गया।
इस दा मतलब की है 9/20 अपना की होएगा टर्मीनेटिंग होएगा, टर्मीनेटिंग डेसीमल होएगा सीधा जा। ठीक है, जेकर मान लो होर एग्जाम्पल लईए तो जिवें मान लो 5/2 की आप गल की सी, तो हुण बटे दे विच की है 2 है, 2 की पावर कुछ है, तो 2 की पावर जो कुछ भी होवे तो की होएगा टर्मीनेटिंग होएगा, पहले क्या है। ओके, मान लो हुण आपां 5 वाला ले लेंदे हाँ, जिवें कि 12/5। ठीक है, तो हुण बटे दे विच 5 है, क्यू बराबर 5 है, 5 की पावर 1 है, तो ये की होएगा अपना टर्मीनेटिंग डेसिमल होएगा, शांत नंबर होएगा। ठीक है, तो उम्मीद करदा हाँ टर्मीनेटिंग डेसिमल तुहानूं हुण एग्जाम्पल नाल क्लीयर हो गया होएगा किहड़ा किहड़ा हो सकता है। ठीक है, हुण आपां नॉन टर्मीनेटिंग की गल कर लैंदे, एक बार इन्हां नूं इरेज कर दिंदे हाँ। तो ये ट्रिक है टर्मीनेटिंग की। हुण नॉन टर्मीनेटिंग नूं एक बारी आपां देखांगे कि नॉन टर्मीनेटिंग दे लई की हदायतां हन। हाँ जी, तो देखो जिहड़ा नॉन टर्मीनेटिंग होएगा ना उस दे विच जो क्यू है, क्यू की होएगा 2 की पावर m गुना 5 की पावर n नाल एक k जुड़ जाएगा, k कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, k की है प्राइम फैक्टर होवेगा अदर दैन 2 और 5, 2 तो 5 नहीं हो सकता। जेकर मान लो k इत्थे 2 हो गया तो इत्थे 2 की पावर दे विच ही जुड़ जाएगा, जेकर 5 हो गया तो 5 की पावर से कुछ जुड़ जाएगा, फिर तो टर्मीनेटिंग ही हो गया। तो k इत्थे की है, जो अपना k है वो 2 या 5 नहीं हो सकता, कि 2 या 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सीगे इन्हां दे फार्मूले। हुण देखो जिवें मैं 1/3 की गल कीती सी, मैं क्या सी कि 1/3 की है नॉन टर्मीनेटिंग है, वो की सी 0.33333 ये चलता जा रहा सी, तो बटे दे विच की है 3 है ना, 3 की पावर कुछ है। तो आपां टर्मीनेटिंग दे लई की फार्मूला वेख्या सी कि जो बटे वाला नंबर है 2 की पावर कुछ या 5 की पावर कुछ है मल्टीप्लाई च होवन वो हो सकता है, या फिर कल्ला 2 की पावर कुछ हो सकता है, या फिर इकल्ला 5 की पावर कुछ हो सकता है। बट इत्थे तो 3 है, इनका मतलब की है ये नॉन टर्मीनेटिंग है। सौखा जिहा काम। हुण आपां अपने क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हाँ। ठीक है, तो इसनों जो नीचे फॉर्मूला है उसनों तुसीं की है नोट कर लेना है। हाँ जी, तो क्वेश्चन वाल आप देखिए, तो अपने क्वेश्चन के विच क्यू की है 1600 है। हुण क्यू नूं तो आपां नूं सिंपल पता, आप इसते जिवें मर्जी इहदे फैक्टर लिख लो, मान लो मैं लिख लेना 16 गुना 100। हुण 16 नूं पता आप की लिख सकते हाँ, 16 नूं आप 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 का स्केयर हुंदा 100 नूं आप की लिख सकते हैं 25 गुना की है 4 लिख सकते हाँ। इत्थे हुण आप फिर देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बन गया, तो 25 नूं आपां की लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना फिर 4 नूं 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो तुहानूं एक चीज़ का पता लग गया होगा कि 1600 दे विच 2 ही आ रहा है तो 5 ही आ रहा है। तो आप पहला क्या सी 2 की पावर कुछ होवे या 5 की पावर कुछ होवे तो अपना की होएगा टर्मीनेटिंग होएगा। ठीक है, तो इत्थे की है 1600 नाल जो डिवाइड हो रहा है 15 वो की है टर्मीनेटिंग है, तो ये अपनी राइट ऑप्शन होएगी। हुण आपां बाकी दियां भी चैक जरूर करांगे कि बाकी दियां टर्मीनेटिंग हैं या फिर नॉन टर्मीनेटिंग। हुण बी की है अपना, देखो बी ऑप्शन सी अपनी 64/455। ठीक है, हुण 455 नूं देखिए तो 455 नूं आपां 5 नाल डिवाइड कर सकते हैं, क्यों इत्थे की आ गया 455। हाँ जी, ये की है 5 नाल तो डिवाइड हो रहा आपां नूं पता है, क्योंकि देखो 80 नूं 5 नाल गुणा करिए तो 400 तो 11 5 55 यानी कि 91 गुणा 5 बराबर 455। ठीक है, 5 तो आ रहा है पर 91 जो है इस दे विच 2 आंदा है, 91 2 ते डिवाइड हुंदा है नहीं हुंदा। इहदा मतलब इत्थे 5 दे नाल k हैगा, कोई k है, यह 91 अपना की है k, इसका मतलब की है यह नॉन टर्मीनेटिंग है। ठीक है, जे इत्थे मान लो कोई अजिहा नंबर हुंदा, मान लो 91 की जगह हुंदा इत्थे 4 ही हुंदा, 4 की है 2 का स्केयर बनता है।
ठीक है 32 ਹੁੰਦਾ, ठीक है 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਸੀ 5 ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 91, 91 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 91 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ k ਹੈ। ਤਾਂ k ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ b ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੰਬਰ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 5 ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਫੈਕਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ 5 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 91 ਬਚਦਾ ਹੈ, 91 5 455। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 91 ਕੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 29/343 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ 29/343 ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 3, ठीक है 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਨਾਲ, ठीक है ਨਾਮ ਤੇ 27, ਇੱਕ ਤਾਂ 9 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 7 ਚੌਕਾ 28 ਤੇ 7 7 49, 49 ਗੁਣਾ 7, ठीक है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ 49 ਗੁਣਾ 7, ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 7 ਹੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜੀ, ठीक है 7 7 49, 49 7 343। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ 2 ਹੈ ਨਾ ਹੀ 5 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ 343 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। ठीक है एक गल इत्थे नोट करने वाली है कि जो 455 नंबर है, ठीक है ये 5 नाल डिवाइड होंदा सी, ये तो सुख हो गया, बट 343 देखो अपन थोड़ा याद होना चाहिए कि इसका फैक्टर की बनेगा है ना, जिवें कि 7 का क्यूब सी, तो इस तरह की कॉमन चीज़ अपन फिर की है याद करनी पैणगियां, थोड़ी मेहनत करनी पेगी। तो सीधा जिवें कि मैं पहला ट्राई किया कि मैं इसनों पहला 2 नाल डिवाइड करने की कोशिश की 343 नूं, फिर मैं की है 5 नाल डिवाइड करने की कोशिश की, मतलब नहीं हो रहा, फिर मैं क्या चलो आप एक्सपैंड करके होर तरीके नाल देख लें, जिवें कि 7 नाल हो गया, तो उत्थों आपां नूं की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि सिर्फ 2 या 5 नाल चैक करन नाल अपना की थोड़ा रिस्क रहिंदा है। जिवें कि कोई नंबर हो सकता है मान लो 242 नंबर है, ठीक है आप कहिए 2 नाल हो रहा, आप कहेंगे ठीक है जी बिल्कुल हो रहा है 121, बट अगर जो 121 है इस दे विच 5 हो रहा नहीं हो रहा, तो ठीक है ना। तो इस करके की है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा जो 242 वाला सी, जे मान लो बटे दे विच 242 हुंदा ते इत्थे 343 सी, ये भी की है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 102 नंबर जो क्वेश्चन सी PS टेट 2023 पेपर 1 का, ये की सी टर्मिनेटिंग ते नॉन टर्मिनेटिंग के रिलेटेड सी, जिसका सही आंसर की है ए ऑप्शन 15/1600। तो उम्मीद करता हाँ कि कंसैप्ट कुछ ना कुछ तो समझ जरूर आया होएगा, बाकी तुसी रिपीट देख लेना, बिल्कुल ही तुहानू की है क्लीयर हो जाएगा इसका की है आंसर है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नैक्सट कोई होर ट्रिक लैके जो कि तुहाडे काम आएगी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर देना चैनल नू।